السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور خوشکن خبر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب نے کچھ دیکھا بھی ہوگا، جو الجامعۃ الغفرانیہ کاشف العلوم ادارہ یہاں چل رہا ہے، یہاں کا معمول رہا ہے کہ دستار بندی کا جلسہ کیا جائے، اور یہ 10-12 سال سے ہر 3 سال پہ یہ جلسہ ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی اس سال بھی جلسے کی شکل میں ہے، اور اس سال الحمدللہ 28 بچے حافظ ہوئے ہیں جن کی دستار بندی ہونا ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید آپ لوگوں کے سامنے قاری ارشاد الرحمان صاحب ہیں، جو تاریخ کے بارے میں اور جلسے کی تیاری کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ جو 26 فروری کو ہے، انشاءاللہ بدھ کا جمعرات پڑتا ہے، بدھ کا دن پڑ رہا ہے، اسی دن جلسہ ہونا ہے، اور 28 بچے کی دستار بندی ہونی ہے۔ اس میں ماشاءاللہ اس کی تیاری زور و شور سے چل رہی ہے۔ کوشش ہے کہ صحیح سے انتظام ہو جائے، اور سارے مقرر حضرات اور شارع اسلام صاحب تشریف لے آئے۔ کہاں ہوگا جلسہ؟ مدرسہ کے پورب سائڈ میں انشاءاللہ میدان ہے، پورب طرف میں ہوگا انشاءاللہ۔ قاری اسامہ صاحب ہیں، جو یہاں کے سینئر استاد ہیں اور بڑی خدمات ہیں، کئی بچے ان کے درجے سے بھی حافظ ہو چکے ہیں اب تک، تو اس سلسلے میں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ بتائیے کتنے بچے حافظ آپ کے درجے سے اب تک ہو چکے ہیں، اور یہاں کے کتنے جلسوں میں شریک ہوئے ہیں، اور جلسے کا کیا اثر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے آپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، جب سے میں اس مدرسے میں خدمت انجام دے رہا ہوں، اب سے میرے یہاں پر 37 بچے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں اب تک۔ اور جلسے کا یہ فائدہ رہا ہے کہ ہم جو شروع میں آئے تھے تو بہت مختصر بچے تھے، اور جب جلسوں کا نتیجہ معلوم چلا، اس کے فائدے ہوئے کہ اس سال کے بعد، نئے سال سے رمضان کے بعد بہت سارے بچے داخلے کے لیے آئے، اور ایسا نہیں دیکھا دیکھی ماشاءاللہ بہترین قرآن کا حافظ بنا وہ بچہ، اور ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا فائدہ رہا، اور بہت اچھا رہا جلسہ جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب رہا، اور اس کی تیاری بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ جتنے حفاظ کرام سب بہترین حافظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بات ہے۔ یہ کون سا جلسہ ہے؟ اس سے پہلے کیا جلسے میں شریک ہوئے؟ اس سے پہلے ہم 2 جلسے میں شریک ہوئے، یہ تیسرا جلسہ ہوگا انشاءاللہ ہمارا۔ کون لوگ آ چکے ہیں یاد ہے؟ ان سے پہلے مشہور معروف مولانا ابو طالب رحمانی صاحب آ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جلسے میں تو وہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا، تو اس میں امارت شریعہ سے مولانا سیولی صاحب اور بھی دیگر قریبی علماء کرام سب یہ سب تھے، اور شاعر اسلام میں مزمل حیات اشفاق براچی صاحب۔ اس سے پہلے والے شروع میں اشفاق صاحب نہیں آ چکے تھے، مختصری جو تھے وہ شعراء سب وہ سب شامل تھے۔ اس مرتبہ ہے جو حضرات جو شعراء جو پچھلے جلسہ میں تھے، اس مرتبہ انشاءاللہ وہ ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا رہا، یہ تیسرا جلسہ ہے ہمارا۔ جی تو یہ ہے ابھی یہ تیسرا جلسہ ہے، یہ قاری اسامہ صاحب ہیں، فلمحان کے ہیں، اور یہ ان کی شرکت ہوئی ہے، یہ تیسرا جلسہ ہوگا۔ اس سے پہلے 2 جلسے میں شریک ہوئے، اور اصل میں یہ چوتھا جلسہ ہے ہم لوگوں کا۔ اس سے قبل 3 جلسے ہو چکے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اور خوشی ہے کہ وہ سب سے پہلا جلسہ جو بہت ہی تاریخی رہا، جس میں استاد الاساتذہ ادیب انشا پرداز حضرت مولانا سعید الرحمان ناظمی ندوی دامت برکاتہم، جو ابھی بہت ہی علیل چل رہے ہیں، طبیعت ناساز رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہماری ادنا دعوت پر اور
हमारी एक छोटी कोशिश पर उन्होंने हौसला अफजाई खुद नवाजी करते हुए 2016 में सबसे पहले जलसे में वो तशरीफ लाए थे, और उस वक्त वो सिर्फ 2 बच्चे हाफिज हुए थे जिनकी दस्तारबंदी थी। हम लोगों को भी वो नया तजर्बा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहां हर तरफ अल्लाह का फजलो करम और नवाजिशात हम लोग देखते हैं, उस मौके पर भी हुआ कि बहुत ही बेहतरीन वो जलसा रहा। वो 15 शाबान को हुआ था, मतलब शब बारात में वो जलसा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जलसा रहा। मोहतरम साहब तशरीफ लाया और जलसे में बयान भी हुआ, उन्हीं के हाथ से दस्तारबंदी हुई, तो वो जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। फिर दूसरा जलसा भी हुआ, उस मौके पर करीब 17-18 बच्चे थे जो हाफिज हुए थे, उसमें भी तशरीफ लाए मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, और इमारत शरिया से भी थे मौलाना इमामुद्दीन कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो गुजर भी गए, हमारे सीनियर दोस्तों और साथियों में थे, हमारे शरिया में मुआविन काजी थे। तो इस तरह वो जलसा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। और तीसरा जलसा जो अभी हुआ 2022 में, वो उस जलसे में गुजरात के शेखुल हदीस हजरत मौलाना महताब साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इसी तरह मौलाना इफ्तिखार नदवी साहब दामत बरकातुहुम, और मधुबनी के इमारत शरिया दारुल क़ज़ा के काजी मौलाना इब्न अब्दुल्लाह साहब, और इमारत शरिया से मौलाना शिबली अल कासमी दामत बरकातुहुम नाज़िम कायम मकाम नाज़िम इमारत शरिया, ये सारे जो अजीम शख्सियात हैं वो सब तशरीफ लाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके पर भी 27 खुशनसीब तलबा थे जिनकी दस्तारबंदी की गई थी, और माशाल्लाह वो भी जलसा बहुत ही कामयाब रहा था। और ये आपको जो हम खुशखबरी अभी सुना रहे हैं, ये जलसा ये चौथा जलसा है, और अल्लाह के फजल करम से इस जलसे में आपको बता दें कि नदवतुल उलमा के शेखुत तफसीर और खानवादा हसनी व हुसैनी आले रसूल के फर्जंद अर्जुमंद हजरत मौलाना सुहैब साहब नदवी दामत बरकातुहुम, वो इंशाअल्लाह यहाँ तशरीफ लाएंगे, जो नदवतुल उलमा में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और शोबा तफसीर के सदर हैं, और उस्ताद हदीस भी हैं, और बहुत ही अजीम शख्सियत है, बहुत ही नामवर शख्सियत हैं। तो उनकी शिरकत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह वो उनके साहबजादे हैं वो भी हैं। इमारत शरिया से इस साल नायब काजी हजरत मौलाना वसी अहमद कासमी साहब इंशाअल्लाह उनकी भी शिरकत होगी। इसी तरह हमारे इलाके के बेनीपट्टी ब्लॉक के सेक्रेटरी हैं इमारत शरिया की तरफ से मौलाना शाहिद हसन कासमी साहब, वो हैं शुआरा में अशफाक बहराइची और कारी मुजम्मिल हयात वगैरह, ये सब हैं। और हम सब इंशाअल्लाह रहेंगे। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि ये जलसा कामयाब रहे, सब लोग दुआ करते रहें। और ये बात आती है कि ये जलसा क्यों करें, क्यों किया जाए। अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों उलमा की तकरीर सुन रहे हैं कि जलसा को रोका जाए, जलसा को मुख्तसर किया जाए, जलसा को खत्म किया जाए। सही बात है, वैसे जलसे को खत्म किया जाना चाहिए जो रिवायती जलसे होते हैं। जैसा कि मौलाना ने हमने सुना कि उन्होंने तकरीर की कि छोटे छोटे बच्चों से 10-20 रुपए के चंदे कराए जाते हैं और महीनों से तालीम का नुकसान होता है, और इस तरह वो जलसा किया जाता है जिसका कोई खास नतीजा नहीं होता, कोई खास मकसद नहीं होता। वो सिर्फ एक अपने गांव की शोहरत के लिए नौजवान तबका, ये आमतौर से अभी ये रुझान बना हुआ है कि नौजवान तबका जहाँ कोई कमेटी बनाए गांव में, और उनका पहला जो ख्वाब होता है कि अपने यहाँ एक जलसा होना चाहिए, शोहरा को बुलाएंगे और पूरी रात वो जलसा करेंगे, खूब जोरदार तरीके से चंदा करेंगे। हम मुकम्मल तौर पर शरह सद्र के साथ कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो जलसा होता है, इसके लिए न कोई बच्चा चंदे के लिए जाता है, बल्कि हमारे असातिज़ा में से भी किसी को इसकी जहमत नहीं दी जाती है। गवाह है, सारे असातिज़ा मौजूद हैं, इलाके के लोग भी जानते होंगे, एक भी उस्ताद को भी नहीं जहमत दी जाती है कि हमारे मदरसे के लिए जलसे के लिए कोई चंदा करे, और न किसी तालिब इल्म को इसके लिए मुकल्लफ बनाया जाता है, बल्कि रोका जाता है। जो तालीम का निज़ाम है, बहुत सख्त निज़ाम चलता है, इम्तिहान है और जो दौर है, सारा निज़ाम चलता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जलसा होता फिर कैसे है, कैसे वो जलसा होता है? ये जलसा होता है अल्लाह के फजल करम से, कुछ खास लोग होते हैं। सबसे बड़ा जो ताउन हो जाता है वो हमारे तलबा के गार्जियन से हो जाता है। यहाँ मालूम है साहिब हैसियत मुस्तती और अहले सरवत
घराने के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सब फीस दे करके पढ़ते हैं। तो जहाँ सब फीस दे करके पढ़ रहे हैं, इसी तरह उनसे हम दरखास्त करते हैं कि इस साल जलसा हो रहा है, आप इसमें ताउन कीजिए। तो कोई 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, इस तरह सबसे बड़ा ताउन तलबा के गार्जियन से हो जाता है, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, उनके गार्जियन से कहा जाता है। इस तरह ये होता है। उसके बाद कुछ खास लोग होते हैं जो हुफाज के लिए जैसे कपड़े देना है, तो किसी ने कपड़े दे दिए, किसी ने कुरान मजीद का हदिया दे दिया, किसी ने बैग दे दिया। इस तरह कुछ खास लोग होते हैं जो हमारे मुंतखब हैं, जो हर जलसे में देते आ रहे हैं। कोई जैसे कोई पगड़ी दे रहा है तो वो हर साल वो पगड़ी, और जो गार्जियन को, हाफिज के वालिद को जो शाल पेश करते हैं वो देते हैं हर साल। तो इस तरह ये सिलसिला चलता है। तो अब हम बताएं या आप लोग भी बताएं कि जलसा क्यों ना करें। दूसरी बात, इसका नतीजा क्या निकलता है। हमारा तजर्बा है, आंखों देखा हाल है, और हमने इसका मुकम्मल तौर पे फायदा देखा है कि जलसे की वजह से एक जो लोगों के दरमियान हुफाज के ताल्लुक से जो जज्बा पैदा होता है, नेक जज्बा पैदा होता है, वो अलग बात रही। और हर जलसे के बाद कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, या यूं ही कहीं वो लगे हुए हैं, वो इरादा करते हैं, अज़्म करते हैं कि हम अपने बच्चे को भी हाफिज बनाएंगे। बहुत सारी माएँ ख्वाब देख लेती हैं कि हम अपने बच्चे को भी हाफिज बनाना है। बहुत सारे वालिदैन जो अपने पोते के लिए, बेटे के लिए हाफिज बनाने का इरादा करते हैं। तो इस तरह ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब होता है, इसका नतीजा भी बहुत बेहतर निकलता है। और यहाँ हर साल बच्चे इसी तरह दाखिले के लिए आते हैं। इतने बच्चे आते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ जगह कम होती है और बहुत सारे बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता है। तो ये सारा नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे का बहुत ही जो मजमा होता है, बहुत ही संजीदा मजमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा के बयानात होते हैं वो भी बहुत संजीदगी के साथ पूरा मजमा सुनता है, और बहुत ही वो हुरदंगी और वो बस आए और गए, सिर्फ नात खां को सुना और ये सब अल्लाह के फजल, हमारे यहाँ वो सब नहीं होता है। बहुत ही कामयाब जलसा होता है और बहुत ही कारामद, मुअस्सिर और जामे जलसा होता है। तो इसलिए इसको हम लोग जारी रखे हुए हैं, अब तक कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका नतीजा बेहतर निकलता रहेगा तो होता रहेगा, और आगे देखा जाएगा, नहीं है तो फिर कोई दूसरी सूरत होगी। लेकिन ये इसका नतीजा हुफ्फाज़ किराम के लिए बहुत बड़ा हौसला मिलता है। सारे हुफ्फाज को दस्तारबंदी की शक्ल में जो हदिये तोहफे दिए जाते हैं वो है, और वालिदैन के लिए सबको शाल पेश किए जाते हैं, जिसको सारे वालिदैन को स्टेज पर बुलाया जाता है और जो उलमा इकराम होता है उनसे उनकी हौसला अफजाई और उनका एजाज किया जाता है। तो इस तरह ये जलसे की शक्ल होती है। तो जितने भी वालिदैन हैं, जो भी वालिद हैं, वो सब ये मंजर देख करके उनके दिल को फरहत, सुकून और खुशी मिलती है, जिसकी वजह से मजीद और बच्चे के लिए अज़्म करते हैं कि हम ये बच्चे को हाफिज बनाए। तो इस तरह ये जलसा है। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करेंगे तो ये जलसा भी कामयाब होगा और बेहतर अंदाज में होगा। ये खबर आपको देना था कि ये जलसा हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि असातिज़ा भी हैं, ये कारी इरशादुर रहमान साहब हैं, कारी मोहम्मद उसामा साहब हैं, ये सारे लोग हैं, और सारे अफराद, सारे इलाके, खास तौर से ये बसैठा बस्ती के जो नौजवान हैं और जो यहाँ के लोग हैं, वो सारे लोग शरीक रहेंगे मेजबानी के लिए, इंतजाम के लिए। इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब रहेगा। और सब लोगों से दरखास्त है, हमारे बसैठा के बाशिंदगान से, नौजवान से, बूढ़ों से, माएँ बहनें, औरतें, सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग इंशाअल्लाह देखेंगे ये वीडियो, तो आप लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार रहें। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप जलसे के लिए कुछ ताउन कीजिए, बल्कि आपको ये कहेंगे कि आप जलसे को अच्छे अंदाज में सुने और जो यहाँ पर हो उसकी निगरानी करें, और जितने मेहमान वगैरह आए सबकी सही देख रेख हो, उनकी निगरानी हो, जलसा कामयाब रहे। और इसी तरह जो भी इलाके के लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे कि इस जलसे को सही रुख पर, सही अंदाज में इख्तिताम तक पहुंचाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं हम सब कि अल्लाह ताला इस जलसे को कारामद, मुफीद, जामे बनाए और हर तरह के शुरूर फितन से हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।